میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر کہ رات کے پرائم منسٹر پاکستان نے اعلان کیا کہ 80 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ حکومت کم کر رہی ہے، جس کے بعد 378 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ہو چکی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ اعلان بھی کیا کہ وفاقی کابینہ نے 6 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں. میرے پر بڑی تنقید ہو رہی ہے لیکن میں بات ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے. پاکستان کی جو اس وقت اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ کوئی اتنی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے. پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ سب کے سامنے واضح ہے. ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے اس کے بعد وفاق کے پاس یعنی حکومتی امور چلانے کے لیے، تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے ان کو قرض دینا پڑتا ہے اور سود کی ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. اور بات کی جائے تو اسی ماہ پاکستان نے $3.5 ارب UAE کو واپس کرنے ہیں. اس کے علاوہ یورو بانڈ کا بھی $1.2 بلین جو ہے وہ بھی اسی مہینے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ اوور آل اگر بات کی جائے تو تقریباً $4.5 ارب پاکستان کا جو اس وقت قومی خزانہ ہے وہاں سے ڈیڈکٹ ہونے جا رہے ہیں. یہ آپ کی صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ شاہ خرچیاں نہیں کر سکتے. عوام کو یقینی طور پر مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہماری جو اس وقت حالات ہیں، جو کنسٹرینٹس ہیں، وہ ایک حقیقت ہے. اور اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو یعنی عیاشی کریں گے اور پیسے یعنی کفایت چاری نہیں اپنائیں گے تو پھر یقینی طور پر اس کے کانسیکوینس جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو ادا کرنے ہوں گے. جب کوئی حکومت قرض لے کر عوام کو سبسڈی دیتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قرض آپ نے واپس نہیں کرنا. جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ سود سمیت واپس کیا جانا ہوتا ہے. یہ ایک دنیا کا نظام اس طریقے سے چلتا ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ یعنی 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 1 ہفتے کی جو سبسڈی ملتی ہے اس کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس سے زیادہ مشکلات میں جکڑے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے فائنینشیل ڈسپلن کو یعنی درست کرنے کی ضرورت ہے اور کافی بہتر کیا ہے ہم نے. بٹ ایون دین ہمارے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب ایک امید دکھائی دے رہی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے $5 ارب ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کو دیے جائیں گے، جو پاکستان استعمال نہیں کر سکے گا. پاکستان نے صرف ڈپازٹ کے طور پر اپنے پاس رکھنے ہیں اکاؤنٹ کے اندر. اور یہ کچھ شرائط ہیں آئی ایم ایف کی کہ ہم نے $12 ارب اپنے ڈپازٹ رکھنے ہیں. تو وہ پہلے UAE نے کمٹ کیا تھا جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا رینیو نہیں ہو رہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد. تو وہ جو گارنٹی دی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ واپس مانگ لیا. تو ہم شکریہ کے ساتھ وہ رقم واپس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو سود ہے وہ سود بھی ہم پے کر رہے ہیں. بہرحال یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جی. ان گراؤنڈ ریالٹیز سے یعنی اگر آپ نظریں چرانے کی کوشش کریں گے بھی تو حقیقت اس سے تبدیل نہیں ہوتی. بہرحال جی ایک اور اہم بات کہ علی پرویز ملک صاحب جو کہ وزیر پیٹرولیم ہے، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ ان کے مطابق حکومت اس وقت مارکیٹس وغیرہ جلد بند کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ انفورس کرنے سے متعلق غور کر رہی ہے. اب فیصلہ اگر نافذ ہوا تو پھر شادی ہالز اور ریسٹورنٹ جو ہیں وہ 10 بجے تک کھلے رہیں گے. اور اگلے ہفتے جو وزیر خزانہ ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اہم ملاقاتیں کریں گے. علی پرویز ملک کے مطابق پاکستان کو بڑے معاشی دھچکے کا سامنا ہے. فریم ورک کا ارسر-نو جائزہ لینا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشکل وقت میں UAE نے $3.5 ارب پاکستان کو ڈپازٹ کیے. کسی بھی ممکنہ واپسی کے لیے مکمل انتظامات موجود ہیں. انہوں نے بیان میں یہ بھی کہا کہ قطر سے گیس سپلائی بند ہونے کے بعد مقامی فیلڈ سے 400 سے 500 MMCFD گیس فراہم کی جا رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے. تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے حالات ہیں ان حالات کے اندر آپ کو ایک ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے، کفایت جاری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مزید مشکل حالات کے لیے تیار آپ نے رکھنا ہوگا. کیونکہ جنگ جب تک بند نہیں ہوگی، جب تک اس کا اعلان نہیں ہوتا، آپ کو اپنے انتظامات رکھنے ہوں گے اور آپ کو
बचत करनी होगी हर एतबार से, तवानाई से मुतल्लिक भी, अपना फ्यूल भी, अपने ज़र मुबादला भी, हर चीज़ आपने अपने लिए कफ़ायतशारी के ज़रिए अगर हम बढ़ेंगे आगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि अमेरिका को बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स ईरान ने टारगेट कर दिए हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया, ये कौम से ख़िताब में ये बात की गई कि इस वक्त ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है और इसराइल और अमेरिका के जो लड़ाका तैयारी हैं वो वहाँ पर फ्रीली मूव अराउंड करते हैं ईरानी फ़िज़ाओं के अंदर। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि F-15 को मार गिराया। ना सिर्फ F-15 को मार गिराया बल्कि एक और उनका त्यारा है जिसको कहते हैं जी A-10 ये भी जंगी त्यारा है, इसको भी मार गिराया गया है। अब पासदारान इनकलाब ने तो तफसीलात जारी की हैं, उसमें अमरीकी त्यारे, ड्रोन और मिसाइल्स गिराने की तफसीलात हैं शामिल हैं। उन्होंने कहा जी कि इसराइली फ़ज़ाइया के लिए जुमे का दिन योम स्याह है। एक दिन में 2 लड़ाका त्यारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन्स मार गिराए। अब एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने वस्ती ईरान में जदीद लड़ाका त्यारा गिराया। त्यारे का पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में नाकाम रहा। ये पासदारान इनकलाब का दावा है जी। वो कह रहे हैं जी कि आबनाए हुर्मस के करीब अमरीकी A-10 जंगी त्यारे को मार गिराया है और फ़ज़ाई दफ़ाई फोर्सेस ने 3 ड्रोन्स और 2 मिसाइलों को भी तबाह किया है। मुतअद्दिद सूबों में कामयाब फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयाँ की गई। एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने खमीन और जंजान में 2 क्रूज़ मिसाइल्स को तबाह किया है। इस्फहान में 2 जदीद MQ-9 ड्रोन्स और 1 हर्मिस ड्रोन को जो है वो तबाह किया है। कार्रवाइयाँ नए जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए की गई। अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास दिफाई जो एयर डिफेंस है वो मौजूद है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो फरमा रहे थे कि उनके पास कोई भी जो है वो एयर डिफेंस नहीं मौजूद। अब अगली बात ये करते हैं जी कि ये जो उनके त्यारे गिरे हैं इसको पेंटागन ने भी तस्लीम कर लिया जी। और दिलचस्प बात यह है कि जो पायलट जो ईरान की हदूद के अंदर गिरे हैं उनकी रिकवरी के लिए, यानी उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया अमेरिकन जो है वो फोर्सेस ने, जिसके नतीजे में उनको मज़ीद अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको नुकसान कराना पड़ गया। तो ये सिचुएशन जो है ये ज़्यादा एस्केलेट हो रही है जी। और इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने ईरान के ऊपर मज़ीद बमबारी की है और बमबारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। सिविलियन जो टारगेट्स हैं यानी जो वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं वो भी अमरीकी और इसराइली फोर्सेस जो है वो कर गुजर रही हैं। ये सिचुएशन इस वक्त जो है वो खासी तशवीशनाक हो चुकी है। अब जो F-15E है ये पहला त्यारा था, ये 2 नशिस्तों वाला है जी F-15 त्यारा, और जो मार गिराया गया है और इसके मुताबिक जो लापता पायलट है जो अमेरिका कह रहा है जी कि उसकी तलाश जारी है और उसकी जो तलाश में जो गए हैं 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, इनको जो एयर डिफेंस है उसने भी टारगेट किया है। तो ओवरऑल जी ये जो सिचुएशन बन रही है अमेरिका के लिए वो खासी तशवीशनाक है। अब वाइट हाउस जनाब क्या कह रहा है? अब ये तो नुकसानात हैं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वाइट हाउस ने ये डिमांड कर दी है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो जंग के लिए लिए जाएं। इसकी कीमत यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर कॉस्ट अगर पे करनी पड़ेगी अमेरिका को, तो ये वो पैसा है जो कि अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा है और ये अमरीकी टैक्स पेयर्स यही तवक्को रखते हैं अपनी हुकूमत से कि ये पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो इसराइली जंग है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करने से वहाँ के जो मेजॉरिटी पब्लिक है वो खासी सीख पा दिखाई दे रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जो कि बड़ी मतलब डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी इस वक्त अमरीकी फ़ज़ाइया के C-17 ग्लोब मास्टर 3 ट्रांसपोर्ट त्यारे जो हैं इनकी एक बड़ी कतार जो है वो मशरिक़ वुस्ता की तरफ जो है वो आ रही है, और जबकि इनके साथ C-135 स्ट्रैटिव टैंकर ईंधन फराम करने वाले त्यारे भी शामिल हैं। C-17 त्यारे फौजी एहलकार, बख्तरबंद गाड़ियाँ और भारी साजो सामान ले जाते हैं। ये बेसिकली जंग जब से शुरू हुई है उसके बाद ये सबसे बड़ी जो फ़ज़ाई मूवमेंट है अमेरिकन फोर्सेस की वो इस वक्त देखने को मिल रही है। अब ये देख लें कि बैरी बेड़े भी उन्होंने भी इस तरफ रुख कर लिया। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अमेरिका की 3 जनरल्स को
गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहलाते हैं, उन्होंने सैक किया है। अब बात बड़ी वाज़ी हो रही है। वैसे तो जो बहाना बनाया कि वो प्रमोशंस वो चाह रहे थे, ये चाह रहे थे, वो चाह रहे थे, लेकिन हकीकत बात ये है कि जो जंग जीती गई हो उसके फातेह आर्मी चीफ को कोई सैक नहीं करता और प्रमोशंस का बहाना बनाया गया हुआ। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ये मतलब खासी टेक्निकल हो रही है, क्योंकि एक तरफ जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो तकरीबन 40% बढ़ रही है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो अखराजात हैं जो रूटीन से 40%, यानी एक साल का अगर उनका $900 बिलियन वो बताते हैं, तकरीबन $1 ट्रिलियन उनका डिफेंस बजट है, तो 1.5 तकरीबन 40% प्लस से ज़ायद जो है वो इस वक्त वो अपने दिफाई बजट में भी इजाफा कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट है जी, ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और फिर लग ऐसे रहा है कि जैसे कोई एडवेंचर करके अमरीकी प्रेसिडेंट को ट्रॉफ़ी लेना चाह रहे हैं ताकि इस जंग से निकला जा सके। अब ये ट्रॉफ़ी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि दूसरी तरफ जो इस वक्त इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान तो मुसलसल कोशिशें कर रहा है इंगेज करने की मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान को और अमेरिका को। और इसी ज़िम्न के अंदर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने अपने सऊदी काउंटर पार्ट से भी बात की और उन्होंने कहा है कि जो चीन के साथ उनकी बातचीत हुई है उस ज़िम्न में मज़ीद पेशरफ़ की जाए। ईरान को भी किसी हद तक इंगेज किया है, अब चीन के ज़रिए भी इंगेज किया जा रहा है। अल्लाह करे कि कोई बेहतर नतीजा बरामद करें और मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ये दोनों ममालिक आ जाएं। अच्छा, मैंने आज कामरान यूसुफ साहब की एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ख़बर पढ़ी है जिसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि 2 मरतबा अमरीकी ऑफिशियल्स पाकिस्तान आने को तैयार थे और ईरान के साथ बिल मुशाफा मुज़ाकरात की नीयत से वो आना चाह रहे थे, लेकिन ईरान की जानिब से पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया गया कि इस वक्त वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ सकते और उन्होंने एक तरीके से इनकार कर दिया। और 2 मरतबा अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो बिल्कुल 11th आवर के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान आने को तैयार थे और फिर ये सारा सिचुएशन जो है वो टोटल तब्दील हो गई। इस बात के ऊपर जो है ये खबर छपी, तो उस पर जो हमारा दफ्तर ख़ारजा है उसकी जानिब से भी एक एलामिया आया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एट्रीब्यूट करके गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। और ये बात जो है वो ख़ासा उन्होंने बेसिकली जो स्पोक्स पर्सन है दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली अपना जो है वो इजहार किया। उसके बाद अब डेवलपमेंट ये है कि अब्बास इराक़ची जो कि सैयद अब्बास इराक़ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया और उसमें वो बड़े वाज़ेह अंदाज से कह रहे हैं कि जो ईरान का मौक़िफ़ है ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी उन्होंने कभी भी पाकिस्तान आने से और मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, ईरान की ये पोजीशन कभी भी नहीं रही। तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको निगेट कर दिया है और साथ उन्होंने ये भी कहा है जी कि ईरान जो तनाज़ा है इसका यानी देरपा और एक यानी बेहतरीन अंदाज से इसका सलूशन चाहता है, ना कि जंग बंदी। तो वो अपना वही जो पुराना मौक़िफ़ है उसको उन्होंने रीएट्रेट किया है और साथ अपने ट्वीट के एंड में वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी उन्होंने कहा और वो वीडियो भी लगाई साथ जिसमें जो ईरानी अवाम है वो एहतजाज के अंदर पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहरा रहे हैं। अब ईरान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है और उन्होंने ये बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी अहम बात है, वो कहते हैं जी कि ईरान पोजीशन इज़ बीइंग मिस रिप्रेजेंटेड बाय यूएस मीडिया। We are deeply grateful to Pakistan for its effort and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of conclusive and lasting end to the illegal war that is imposed on us. Pakistan Zindabad. अब इससे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से कोई क्लैरिटी के साथ क्या बयान दे, यानी पाकिस्तान की जो काविशें हैं इसको भी अप्रिशिएट किया गया है और साथ साथ उन्होंने यानी वाज़ेह और दो टोक अंदाज में जो ख़बरें हैं उनकी भी तरदीद कर दी है। जबकि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने उन्होंने कोट किया है अब्बास इराक़ची को। वो कहते हैं जी ट्रूली अप्रिशिएट योर क्लैरिफिकेशन माय डियर ब्रदर, उनका साथ जो ट्विटर हैंडल है @इराक़ची। तो इसको उन्होंने जो पाकिस्तान की और ईरान के झंडे लगा के बीच में दोस्ती का जो है ना वो हाथ में ला रहे हैं, वो साइन बीच में जो है वो ट्वीट का हिस्सा बनाया है। तो ये आप देख लें जी
کہ کس قدر جب وار چل رہی ہوتی ہے, کانفلکٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کس قسم کی خبریں آگے بڑھتی ہیں. لیکن بہرحال پاکستان اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر مرکوز ہیں. پاکستان انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا, اور یہ کامیابی دنیا پاکستان کو جو ہے اس وقت امید کی کرن کے طور پر دیکھ رہی ہے, اور یہ پاکستان یہ کامیابی اپنے نام کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پوری قوم سجدہ ریز ہو کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مشکل گھڑی سے باہر نکالے اور جلد از جلد دنیا جو ہے وہ دوبارہ اپنے معمول کی طرف واپس بڑھے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی, اللہ حافظ.